just abrogation of Article 370 is not restoration of peace in Kashmir. Don't compare that with as a solution for Kashmir. Kashmir will become peaceful, it will become thriving again only when Kashmiri Pandits are able to go back to Kashmir. And without that, it won't happen. Sri Vivek Ketanka. I'm a Kashmiri Pandit, maybe the only Kashmiri Pandit in Rajya Sabha today. Over a period of 100 years, we know how Kashmiri Pandits migrated out of Kashmir. The last big exodus started after 1990. You have created union territories. Now, can all these Kashmiri Pandits actually go back? Will they be able to go back? धन्यवाद चेयरमैन साहब. ये तो पुराना दर्द है जो कि दूर नहीं हो रहा है. पंडितों को तो बहुत सालों से, सदियों से वहां से जो ट्रीटमेंट मिला और छोड़ना पड़ा, और 90 के बाद तो लगभग करीब 80%, 90% पंडित फैमिलीज वहां से चली गई हैं. सब वापस जाना चाहती हैं, वो वहां रहना चाहती हैं, मगर वो जो व्यवस्थाएं, जो सिक्योरिटी, जो रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? माननीय विवेक तनखा जी. क्योंकि मैं शायद अकेला कश्मीरी पंडित हूं, तो मैं एक शेर के साथ आज अपनी बात शुरू करना चाहूंगा. सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं. सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं. भटक रहा हूं तन्हाई में, नहीं भूला कोई किस्सा हूं. छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं. छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं. मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं एक कश्मीरी हूं. और ये खाली मैं एज अ पंडित नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ कश्मीरी बोल रहा हूं. आई एम अ कश्मीरी पंडित. देयर इज अ ह्यूज इश्यू ऑफ कश्मीरी पंडित्स. मैं एक बिल ला रहा हूं, प्राइवेट मेंबर्स बिल, which is notified for 1st of April, which I am calling Kashmiri Pandit Rescue, Restitution, Resettlement, Rehabilitation Bill 2022. मैं तो full hand से I will appeal to the entire house. Yes. Please support that bill that day. Yes. अगर 32 years में, even 32 years में, if we can do justice to a community which otherwise is an educated community, which otherwise has never demanded. हमने झगड़ा नहीं किया स्ट्रीट्स में, हमने पत्थर नहीं फेंके, हमने ट्रेन नहीं रोकी, हमने बिल्डिंग नहीं जलाई, बिकॉज हम लोग पढ़े लिखे थे, हम लोग सभ्य थे और हमारी संख्या कम थी. हम अपना काम में लग गए, मगर दिल में तो तमन्ना है कि वंस वी शुड गो बैक टू कश्मीर. सबके दिल में तमन्ना है. तो let us this is one time when we should all join hands to ensure that justice is done to Kashmiri Pandit. Thank you. शायद आज पूरे पार्लियामेंट में मैं एक ही कश्मीरी पंडित हूं, और इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. ये सच्चाई है कि हर पंडित कश्मीर वापस जाना चाहता है. वो उसकी भूमि है, वो वहां रहना चाहता है, अपने भाइयों के साथ रहना चाहता है. कश्मीरी पंडित एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कश्मीर का. और आप ये देखिए कि जिस दिन से कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर निकला है, उस दिन से ही हमारे लोगों की वहां परेशानियां स्टार्ट हुई. कहीं ना कहीं इस पूरे परेशानी का एक आंसर कश्मीरी पंडितों का वापस आना भी है. For leave to introduce a bill to provide for the social, political, economic rehabilitation of Kashmiri Pandits, protection of their property, restoration of their cultural heritage, ensuring their safety and security, provision of rehabilitation and resettlement package to them, and for matters connected therewith or incidental thereto. And it's a first attempt after 32 years. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Vivek Ketanka. I introduce the bill, sir.
The Kashmiri Pandits Recourse, Restitution, Rehabilitation and Resettlement Bill 2022. Shri Vivek K. Tankha to move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Vivek Tankha ji. Sir, I seek a permission to introduce the bill. Thank you. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने 2 फरवरी 2024 को कश्मीरी पंडित विधेयक 2022 राज्यसभा में पेश किया था, लेकिन वित्तीय निहितार्थों के चलते इससे राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करनी पड़ी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद सांसद विवेक तनखा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि संसद में पहली बार माननीय राष्ट्रपति ने कश्मीरी पंडित नामक निजी विधेयक को सदन में विचार के लिए पेश करने की अनुशंसा की है। अगर इस बिल पर चर्चा होती है और इसे मंजूरी मिलती है तो ये न्याय के लिए कश्मीरी पंडितों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वित्तीय निहितार्थ वाले बहुत कम विधेयक की अनुशंसा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 90 के दशक में कश्मीर और घाटी में आतंकवाद और हिंसा के चलते हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। विस्थापित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। मगर क्या इस बिल पर राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद कश्मीरी पंडितों का संघर्ष अंजाम तक पहुंचेगा?